But we are about to complete this exercise 1.3. जरा check करो, are we just pending with the last sum, I suppose? Yes. Sum number 12, the last sum we are supposed to complete. Let's do it fast. Mark it important. 12th wala sum. Mark it important. Let's start reading it. There are three events A, B and C are sample space, are mutually exclusive and exhaustive events. देखो पहला ही लाइन अपने को समझ में नहीं आता है बेटा. What are mutually exclusive? Now I hope after so many sums where they use this word mutually exclusive, now is it getting into your head that A intersection B will be null set and exhaustive? A union B will be equal to universal set. Now what information they have given? Pay attention. Probability of C complement is how much? 0.8. And then what is the next one? 3 probability of B is equal to 2 A dash. 2 probability of A dash. Yes or no? भाई हमको ढूंढना क्या है? We are supposed to find probability of A and then we are supposed to find probability of B. But the sum is very easy, but you need to be attentive. It's a bit lengthy. Pay attention. Can I write probability of C complement? Whatever they have given to us is 0.8. But what's the formula of probability of C complement? What's the formula? 1 minus probability of C. That's 0.8. बट ये P of C वहां चला जाएगा 0.8, यहाँ आ जाएगा तो probability of C will be 1 minus 0.8. That will be 0.2. Yes or no? Yes. Now they have said that these three events A, B and C, they are mutually exclusive and exhaustive. So can I write, if I write A union B union C is P of A plus P of B plus P of C, and can I say that will be equal to 1 because it is mutually exclusive. And so P of A plus P of B, what is P of C? 0.2. क्या ना 0.2 हम ये साइड ले आएंगे. So 1 minus 0.2 is equal to P of A plus P of B. Therefore, can I write P of A plus P of B is equal to 0.8? So that's my first equation. I can do it. This is my first equation. Now pay attention. Let's use this information. What they have said. 3 probability of B is equal to 2 probability of A complement. But what's the formula of A complement? So 3 probability of B is equal to 2 into 1 minus P of A. Yes or no? Yes. Raise your hand. How do I open that? Can I say 2 will be multiplied? Yes. So 3 probability of B is equal to 2 minus 2 probability of A. Can I say 2 probability of A को ये साइड ले आओ. So 2 probability of A plus 3 probability of B is equal to 2. Can I say this is my second equations? Now in earlier standards, whenever the 2 equations are given, do you know how to use that elimination method? Yes. When 2 equations are there, do you know how to eliminate the same? Yes. How many of you know that? Come on, raise your hand. How many of you know that? अच्छा मैं लिखता हूं फिर तू मेरे को हेल्प कर रहा हो. ठीक है. Probability of A plus 3 probability of B is equal to 2. ये पहला वाला. Then probability of A plus probability of B is equal to 0.8. चल हेल्प कर मेरी. पता कैसे करूं आगे एलिमिनेट? इक्वेशन 1 में ना उसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी. इक्वेशन 1 में नीचे वाले में क्या करूं? साइन चेंज करनी पड़ेगी. साइन चेंज कर दूंगा तो क्या होगा? ये माइनस ये माइनस ये माइनस. हां. सो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा. 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा. तो अल्टीमेटली तेरे को P और A B मिलेगा कैसे? मिलेगा ही नहीं. साइन चेंज सीधा कर दूंगा तो मिलेगा ही नहीं. याद नहीं आ रहा है. रोमाना
multiply second equation by 2. मतलब इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं, शी इज सेइंग इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, लेकिन मैं क्यों करूं 2 के साथ मल्टीप्लाई? कहना से यहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, अगर इसको भी मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये भी 2 हो जाएगा, ने बची 2 2 कट થઈ શકે, and that is how you are using the elimination of the equation. Yes. Earlier standard, it was earlier standard. So I trust you, तुमने वहां कुछ नहीं करा है, सब मेरे माथे ही है. So whenever in the two equation you need to eliminate either A or either B, तो वो दोनों सेम होने चाहिए तो ही वो एलिमिनेट हो पाएंगे. So इसको सेम करने के लिए मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अच्छा, एकलो आने केम ना करू सर, बधाने केम करो છો? बेटा इक्वेशन में कोई एक जोड़े मल्टीप्लाई ना થાય, नहीं तो B ने खोटू लागी जाए, आने खोटू लागी जाए. એટલે we need to multiply it by with all. 2 को हमको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है. So 2p of A 3p of B is equal to 2. Now ये हो जाएगा 2p of A plus 2p of B 1.6. अब रहो चेंज कर दे साइन, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट हो जाएगा, 3 में से 2 गया 0.4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया मेरे को 0.4. ये पहले वाले इक्वेशन में डाल दो तो P of A भी मिल जाएगा, चेक करो जरा. सो P of A plus P of B is equal to 0.8. So P of A plus 0.4 is equal to 0.8. Therefore P of A is equal to 0.8 minus 0.4. It's 0.4. थोड़ा लेंदी है बाकी, लेकिन सम एकदम इजी है. When you get these two equations, you just know, you should know कि how to eliminate the equations. Copy beta, what you are waiting for? Come on, talent, show talent. बेटा गाड़ी कहाँ पहुंची? बेटा हो गया, जल्दी करो, इसके बाद मस्त वाला टॉपिक शुरू करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी नीड टू स्टार्ट.
સર આ મોટો સમ 3 માર્ક માટે હોય? It should be for 5 mark. Beta, is it done? बेटा कुछ तो बोल दो यार. इज इट डन? पक्का? पक्का? Shall I rub it off? Okay. But the next topic, give the heading in your notebook. Conditional probability. Conditional probability. Now, अभी ये जो बारिश का मौसम और ये जो सीजन अभी जो चल रहा है, क्या ना से उसमें अपने टेस्ट बर्ड्स जो हैं, खाने के जो टेस्ट बर्ड्स हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं कुछ गरम गरम खाने के लिए. अरे हाँ के ना? तो तुमने अभी ये सीजन में ऐसा कभी हुआ है कि एकदम से मतलब क्रेविंग आ रही है कि हम कुछ गरम गरम खाएं? सो तुमने कभी कुछ खाया ये सीजन में? हाँ, कितनों ने क्या खाया जरा शेयर करते हैं. चलो हाँ, राव राव. भजिया. ओके, देन मकाई कॉर्न, या कॉर्न हम खाते हैं. ओके, देन मैगी. But that you should eat every day. You don't eat on this rainy seasons and all. पची? हाँ, समोसा खाना अच्छा लग रहा है. फिर चाय पीना अच्छा लगता है. ये जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई गरम गरम बेटा टी पीने की अपने को इच्छा हो जाती है. देन हाँ सर, मैं तो कॉफी पीता हूँ. हमने जाना मैं हाँ, तेजस तो बॉर्नवीटा पी के ऐसा हुआ है. ये तो कहने से ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपनी ये जो बरोड़ा की जो फेवरेट जो कहने से वो भी खाने की ज्यादा मजा आती है ना. और अपने जैसे लोग अगर वो खाने बैठ गए हैं तो उसको बोलते हैं, वो वेंडर को सेव सर की लारी वाले को बोलते हैं तरी नाक जी, तरी नाक. अब यहाँ से पसीना आना चाहिए, नाक में से पानी आना चाहिए, तब जाके लगा के सेव सर खाया हमने. यस और नो? अब इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज कर रहे हैं जरा ध्यान दो. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज कर रहे हैं बेटा? से फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा इवेंट बना रहा हूं कि भाई तुम, ये बारिश हो रही है, तुमको चाय पीने की इच्छा हुई, तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं एंड उसकी प्रोबेबिलिटी से इवेंट ए इज 0.8. क्या करा तुमने? एक दिन बारिश गिरी, मस्त बारिश गिरी, तो तुमको टी पीने की इच्छा हुई, चाय पीने की इच्छा हुई, तो तुम चाय पियोगे. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8. अब कहने से 2-3 दिन पर वापस सनलाइट आया है, मस्त माहौल वापस गरम गरम हो गया है सनलाइट से, फिर वापस बारिश गिरती है, तो यू थिंक के भाई ना इस बार अब चाय पीने नहीं जाना यार, मजा नहीं आ रहा है चाय में, लेट्स गो फॉर. तो वो तुम जो खाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6. कि you people having say on a rainy day, it's 0.6.
मतलब एक दिन तुमने क्या पिया? चाय। एक दिन तुमने क्या खाया? सेव उसड़। नाउ कैन आई से अपने ऐसे नालायक भाईबंद हैं जिसको किसी को चाय अच्छी लगती होगी या तो किसी को, ऐसा भाईबंद हो सकते हैं ना नालायक। अब वापस तीसरे दिन बारिश गिरी, तीसरे दिन क्या हुआ? वापस बारिश गिरी, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पीने चले गए। हमने जैसे ही चाय खत्म कर ली, वहीं अपने दूसरे फ्रेंड का मैसेज आया, कहीं छे? तो तुम ऐसा बोले कि बस बाहर निकला हूं मैं, तो पहले मैसेज कर है सेव उसड़ खावा जाइए। तो तुमने ऑलरेडी चाय पी ली है, एंड नाउ योर फ्रेंड इज आस्किंग फॉर अ सेव उसड़. What will be the probability of you having a sev usad? Will it be 0.6? Will it be 0.6? So how much it will be? Can I say the probability of now having sev usad after having tea? The probability it may increase or it may decrease. तुम अपने फ्रेंड को बोलोगे नहीं यार अभी चाय पिए, सेव उसड़ खाने की इच्छा नहीं है, या तो दूसरा कोई होगा हेड चल जाइए चल, तो तुम चाय के बाद भी सेव उसड़ खाने जा रहे हो। लेकिन तुम अगर अकेला सेव उसड़ खाने जाते तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। लेकिन चाय पीने के बाद सेव उसड़ की अगर मैं प्रोबेबिलिटी ढूंढूं कि तुम वो खा रहे हो, तो आइदर दैट प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज, इट विल नेवर रिमेन सेम एज 0.6 because one of the condition has affected him. एक कंडीशन हुआ, एक इवेंट सेव उसड़ खाने से पहले ऑलरेडी हो गया जो इसको अब अफेक्ट कर रहा है, और ये जो अफेक्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहेंगे हम उसको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इवेंट बी की सेव उसड़ की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, लेकिन अगर उसको कोई इवेंट ऑलरेडी उसके पहले कुछ हो गया है, कोई कंडीशन ऑलरेडी प्रिवेल हो गई है, तो फिर उसकी ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.6, इट विल आइदर इंक्रीज और इट विल आइदर डिक्रीज, कीपिंग इन माइंड व्हाट? द कंडीशन। एंड कैन आई से इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो ना, कि तुमने सेव उसड़ खा लिया एंड फिर तुम्हारा भाईबंद बोलता है लेट्स गो फॉर टी। सो अगेन टी की प्रोबेबिलिटी जो 0.8 है वो सेम नहीं रहेगी। अगेन आइदर द प्रोबेबिलिटी वुड और इट वुड डिक्रीज बिकॉज यू ऑलरेडी हैड एक इवेंट ऑलरेडी हैपन हो गई है जो अब ये इवेंट बी को अफेक्ट करेगा। तो जो इवेंट हैपन हो गई है दैट बिकम्स अ कंडीशन फॉर अस, एंड फिर जब हम प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे हम? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। श्योर? अब उसको लिखने का कैसे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखने का कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कैसे लिखेंगे हम? मतलब मैं चाय पीने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहा हूं जब मैंने ऑलरेडी सेव उसड़ खा लिया। नहीं समझ में आ रहा है? ए बाय बी मतलब I am trying to find out the probability of having tea when I already had सेव उसड़। मतलब the probability which you are supposed to find that will come in the numerator, and the condition which is affecting that will be coming in the denominator. फॉर्मूला क्या लगेगा? A intersection B upon probability of B. What's the formula? या तो क्या ना से मुझे B by A भी ढूंढना पड़ सकता है, B by A मतलब find the probability of having when you already had tea, when you already had, तो वो टी पीने की इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुकी है, और उसके बाद हम किसका फाइंड कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सेव उसड़। सो दैट्स B by A। अब मैंने B को ऊपर क्यों रखा? उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी है, एंड द इवेंट व्हिच हैज ऑलरेडी अकर्ड दैट विल कम इन द डिनोमिनेटर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A।
कहना से जो डिनोमिनेटर में है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर सेम ही है, A इंटरसेक्शन B, राइट। बेटा अब सर मुझे सम में पता कैसे चलेगा, क्योंकि मेरे तो पता है ना आपको, सम इंग्लिश पढ़ के मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बेटा हैव यू अगेन गॉन थ्रू विद द कीवर्ड्स? एंड वाला कीवर्ड्स किसके लिए है? एंड, एटलीस्ट लॉ ऑफ एडिशन और लॉ ऑफ एडिशन, ओनली वन ऑफ द टू इवेंट्स डिफरेंस इवेंट। बेटा इसके कीवर्ड्स लिख लो, इफ known that, given that, if known that, given that, बस हमने आटला याद आ गया, लखी लो। if known that, given that। लेकिन बेटा सम में कंडीशनल में ए ऊपर बी नीचे ऐसा कब लेने का वो समझ में आ रहा है? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो ऊपर, एंड द इवेंट विच इज ऑलरेडी अकर्ड दैट विल बी इन द डिवीजन। ओके, बेटा सम एक दो चालू करे देखना, इसमें सम एक दो चालू करे देखना, फिर आया तो 3-4 तुम कर लेना हैं। 1.4 पर आ जाओ बेटा, माय फेवरेट एक्सरसाइज। पेज नंबर 47, स्टार्ट रीडिंग सम नंबर 1। Start reading sum number 1. But there are how many children in the family? There are how many children in the family? आगे पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। If the first child is a, find the probability that both the children in the family are girls। वहां पर देखो कोई कीवर्ड तुम्हें दिख रहा है? दिख गया? अंडरलाइन कर लो उसको। उस पर से अपने को क्या पता चला? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी तो मुझे उसमें 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें, एक इवेंट ए, एक इवेंट बी और एक ए इंटरसेक्शन बी। ए बाई बी है कि बी बाई ए है वो हम लेटर स्टेज पे फाइंड करेंगे, अभी वो नहीं पकड़ रहे हैं। तो जब भी ये इफ तुमने शब्द देखा मतलब कंडीशनल लग रहा है। कंडीशनल में फिर कितनी चीजें चाहिए अपने को? इवेंट ए, इवेंट बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा फिर से सम पढ़ना शुरू करो इफ से। इफ फर्स्ट चाइल्ड इज अ, बस वहां तक पढ़ो। इफ फर्स्ट चाइल्ड इज अ, तो उसको मैं इवेंट ए बना दूंगा। क्या कर देंगे हम उसको? इफ फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, दैट्स माय इवेंट ए। आगे वाँचो, सुनिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अंडरलाइन करो, बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल, वो मेरा इवेंट बी। बड़ा पता चला मैंने इवेंट ए और इवेंट बी कैसे डिसेक्शन करके फाइंड किया शब्दों को? नहीं। कैसे बेटा, कैसे कैसे कैसे? पहले हमने क्या किया? इफ द, उसको मैंने इवेंट ए बनाया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन, तो बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, उसको इवेंट बी बना दिया। श्योर? अब लिखना शुरू करते, मेरे साथ लिखना शुरू करो। चलो, हमने बेटा फैमिली उठाई है 2 बच्चों की, तो टेल मी द सैंपल स्पेस। बेटा टेल मी द सैंपल स्पेस ऑफ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। बॉय बॉय, boy girl, girl boy, girl girl।
सो मेरा n 4 आएगा, ऐसा मैं लिख सकता हूं? फिर लिखा जाए, चलो लेट A be the event. Let A be the event that first child is a girl. Let A be the event that the first child is a girl. But raise your hand. First child is a girl. GB. वेरी गुड, लिख लो। फर्स्ट चाइल्ड अपने को गर्ल चाहिए, तो जीबी जिज्जी। सो बेटा व्हाट्स माय पा? 2/4। होशियारी मत मारो, कीप इट एज 2/4। ओके, इवेंट बी लिखते हैं। चलो इवेंट बी क्या बनाया मैंने? बोथ द चिल्ड्रन are girls. Beta, both the children are girls. So beta, it will be GG. So you will have only one outcome. So probability of B will be 1/4. Beta, do you find any intersection this A and B में? अच्छा, इंटरसेक्शन में हमको देखना क्या होता है? वेरी गुड, कॉमन आइटम बेटा, शाबाश। व्हाट्स अ कॉमन आइटम? जी। सो 1, therefore A intersection B will be 1/4. A intersection B will be 1/4. Now beta, I am giving you 2 minutes. Read it again. Tell me, conditional A by B करूं कि B by A करूं? पढ़ो और हाथ ऊपर करना है। कंडीशनल में A by B करूं कि B by A करूं? B by A। बेटा हम never saying B by A। बेटा बा उसे बा, B by A, बा। A by B। सर दोनों ही नहीं समझ में आ रहे हैं। यानी क्या आएगा? क्यों B by A आएगा? क्योंकि सेकंड को पूछा है कि फर्स्ट चाइल्ड इज अ गर्ल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल। सो सेकंड A एंड B से सेकंड फाइंड करना है, तो इस पर बेटा क्या बोल रही हो, क्या बोल रही हो? समझ में मुझे नहीं आ रहा है। बेटा ध्यान से तुमने पढ़ा? ध्यान से पढ़ा? नहीं। क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स। फाइंड तुझे फाइंड करवानो છે ન્યુમરેટર માં આવે ને, અને ફાઇન્ડ ક્યારે કરવાનું? ઇફ ફર્સ્ટ ચાઇલ્ડ ઇઝ અ ગર્લ, એટલે પહેલી છોકરી થઈ ગઈ છે, એ ઇવેન્ટ પતી ગયું। पहली छोकरी થઈ ગઈ, that event is over. Now I have to find both the children are girls. तो जिसे find करना है वो numerator, and the event which has already occurred will come in the denominator. So A intersection B is, ऐसा फॉर्मूला लगेगा, A intersection B upon P of A। शाबाश बेटा। A intersection B क्या है? 1/4 डिवाइड बाय 2/4। सो बेटा 4 कट, सो मेरा आंसर है 1/2। मेरा आंसर है 1/2। बेटा हमने मैकेनिकली सारी चीजें ढूंढ तो ली, लेकिन समझ में कुछ आ रहा है? नहीं। अगर मैं तुमको पूछूंगा टेल मी व्हाट्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सम, व्हाट विल यू टेल मी? कम ऑन, टेल मी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सम। व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? टेल The probability of then both the child will be girl after the first child is girl, it will be 1/2. बेटा ये इंग्लिश में ये स्टेटमेंट नहीं बताना है, समझाना है, हमको समझाना है कि अगर फर्स्ट गर्ल होगी, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में समझा रहे हो।
बेटा क्या इंटरप्रिटेशन है वो जरा समझो। हमने जब खाली फाइंड करा बोथ चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी गर्ल होने की, खाली पहले अगर फाइंड करी तो वो आ रही थी 1/4। कहना से 1/4 इज 25%। मतलब जब हमने इवेंट बी को अकेले ढूंढा, अकेले विदाउट एनी कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी वाज 1/4 व्हिच वाज 25%। बट जैसे ही मैंने कंडीशन लगा दी कि पहली भी लड़की है और अब ढूंढ कि दूसरी भी क्या आएगी, तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/, it became 50%. So because of a condition earlier whose probability was 25, after the condition it rose to 50%. मैंने अभी समझाया ना कि एक कंडीशन के आने से either the probability would increase or the probability would decrease. तो पहले 25% थी, ये कंडीशन के आने की वजह से it became 50%. ऐसा तुमको समझने का था रे ऐसा? पक्का इंटरप्रिटेशन अब पता चला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एकली इवेंट હતી ત્યારે આટલા હતા, પણ એક કંડીશન આવી તો it became 50%. Sure, let's start with the second sum. Come on. 2 6-phase balanced dice are thrown simultaneously. बेटा इसके आउटकम मैंने ना लिखवाने तुमको। कितने हैं? प्राउड ऑफ यू। देखो अब तो इतना अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन if the sum of the numbers on the both dice is more than, find the probability that both the dice show same numbers. Now beta you read the sum and tell me मैं इवेंट A किसको लूंगा, इवेंट B किसको लूंगा, ने अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है? क्या से फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करनी है, ये पता चल रहा है? कैसे पता चला कंडीशनल है? इफ। तो बेटा कीवर्ड समझ में आ रहा है कितने इंपॉर्टेंट हैं? अच्छा इवेंट A क्या बनाओ? इवेंट A the dice the number is more than, very good, उसको मैं इवेंट A बना दे रहा हूँ। फिर इवेंट B क्या बनाओ? both the dice shows the, चालू कर दो सम, खुद से मैं नहीं करवा रहा, चालू कर दो, आ जाएगा, शाबाश। बेटा अपने को U कैसे लिखने का? सैंपल स्पेस 1 1 1 2 डॉट डॉट 6 6 हूँ 1 6 सीधू 6 6 भाई वार्तापति के I don't want to waste your time in writing 36 outcomes. Rather you focus on making events. बेटा इवेंट A क्या बनाना है अपने को? इवेंट A sum on the dice, sum of two numbers of the dice is more than 7. बेटा तो क्या लग रहा है 1 की सीरीज में ऐसा कोई आएगा मोर देन 7? 1 की सीरीज, व्हाट अबाउट 2 की सीरीज? 2 5 कौन था? 2 5 कौन था? 2 5 आएगा बेटा। आई वांट मोर देन 7, तो पहलू 2 6 आओ से 3 5 3 6 भी आएगा ना? 4 अजी फोड़ सर फोड़ 4 5 4 6 5 3 5 3 5 4 5 5 6 6 2 6 3 कौन लिखेगा बे? नल्ला लाइन सर जातो नहीं
सो कुछ 15 आइटम आ रही है, देखो तो 15 आइटम आ गए. सो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 15 by 36. बेटा इवेंट्स बीज, इवेंट बी क्या है? बोथ द डाइस shows सेम नंबर. बेटा दोनों डाइस पर सेम नंबर आ रहे हैं, बोले तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7. मजा आ रहा है सर डाइस पे. सो बेटा इट विल बी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. So total 6. So probability of B will be 6 by 36. Probability of B will be 6 by 36. बेटा टेल मी व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? इसमें और इसमें कॉमन क्या निकल रहा है? 4 4 5 5 4 4 5 5. So can I say total 3 outcomes? So A intersection B will be 3 by 36. Beta, I give you time. Read it sufficiently. Read it properly. Tell me A by B ke B by A. A by B ke B by A. How many of you saying ba? बेटा बा. Very good. Find कर लो, सही है. मुझे ढूंढना है both the dice shows the same number if. That's 1 by 5, yeah. Probability of B by A is equal to A intersection B upon probability of A. So 3 by 36 upon 15 by 36. So 36 gaya, 3 by 15. That's 1 by 5. Sure? बेटा सम नंबर 3 है ना, बहुत इजी है. क्यों? जरा यहां ध्यान. क्यों? हमने पहले वाले सम में क्या करा? इवेंट A ढूंढा, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढी, B ढूंढा, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढी, A इंटरसेक्शन B, सब चीज हमने फाइंड करी. थर्ड वाले सम में बेटा बैठे बिठाए सारे लड्डू दे दिए तुमको. तुमको खाली पढ़ के ये डिसाइड करना है A by B है कि B by A. प्रोबेबिलिटी ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, they have already given. Start reading, come on, start reading the third one. શું કે છે બેટા? જરા વાંચો. vehicle owner visiting a petrol pump. બેટા જરા વાંચો. Please read the question.
बेटा कहां पहुंचे? बेटा डिड यू रीड? बेटा द व्हीकल ओनर गोइंग टू अ पेट्रोल पंप fills with petrol 80%. Now 80% को हम प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 80% है तो 80 by 100 कर दो, that comes to 0.8. तो लिखना शुरू करेंगे, चलो लिखना शुरू करेंगे. Probability of event A that vehicle owner fills petrol on a visit to petrol pump is 80%. ऐसा लिखो, is 80%. ऐसा लिखेंगे, probability of A is 80%. That is 80 upon 100, that is 0.80. ऐसा. Are you getting it? Then next, probability of event B. Probability of event B that a vehicle owner. But a vehicle owner fill air in his vehicle on a visit to a petrol pump. So बेटा उसका probability of B क्या आएगा? 60%. So that is 60 by 100, that is 0. Beta that's 60%. So 60 upon 100, that is 0.60. ठीक है? ठीक है? उसके बाद लिखेंगे probability that a vehicle owner would fill both petrol and air. But what do you mean by the word and air? And लिखा जाए, बहुत बढ़िया. A intersection B, that's 50%. That's 50 upon 100, that is 0.50. Now beta you are supposed to read everything on your own. What are we supposed to find? नीचे वांचो, બંને probabilities આપણે find કરવાની છે. સ્ટાર્ટ કરો, વાંચવાનું સ્ટાર્ટ કરો, come on. But it's very simple. What are we supposed to find? बेटा फर्स्ट वाले में B by A के A by B है, सेकंड वाले में A by B है. दोनों ही फाइंड करना है. कम ऑन, फाइंड कर दो फटाफट. फाइंड कर लेंगे बेटा फटाफट. Beta, I hope you just need to put the formulas and you need to get the answer. That's it.
But let's complete the last sum. Come on. But let's complete the last sum. Page 48 on the top, sum number 4. But page 48, sum number 4. Start reading. 80% of the customer hold a saving account. 50% of the customer hold a current account of a nationalized bank. 90% of the customer hold at least. मतलब इट्स अ लॉ ऑफ एडिशन, मतलब क्या? ए यूनियन बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, कितना है? 90%. Now if one of the account holder randomly selected from this bank hold which account? Find the probability, find that he holds. I'm with you. Let's start the sum. I'm with you. लिखना शुरू करेंगे. Probability of event A that a customer hold savings account in a nationalized bank is, तो बेटा P of A क्या आएगा? P of A 80%, 0.80. बेटा उसी तरह से इंग्लिश में लिख के B इवेंट बना लोगे? क्या? Probability of event B that a customer hold a current account. That a customer hold a current account in a nationalized bank. But they hold a current account in a nationalized bank. Come on. 0.50. उसके बाद probability that a customer hold at least one of the two accounts. Customers hold at least one of the two accounts. तो can I say P of A कितना था? 0.80. P of B 50. at least, that was A union B 0.90. अब बेटा हमें आगे जाके सम में तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, क्योंकि देखो वहां पर कीवर्ड इफ दिया है. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढनी है तो इंटरसेक्शन तो मिलना जरूरी है मेरे को. हाथ ऊपर करो. इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा? बहुत इजी है. इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा रचिका? P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. इन शॉर्ट मेरे को A यूनियन B का फॉर्मूला लगाने का ना, एंड वो लगा के फिर हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे. वंस आई गेट द इंटरसेक्शन, पची तो कंडीशनल मारवता आवड़ से करिए. चलो चलो चलो. A union B is P of A plus P of B minus A intersection B. तो 0.90, 0.8, 0.50 minus A intersection B. A intersection B आ बाजू है जिससे 0.9 पहली बाजू. So A intersection B is 0.80, 0.50 minus 0.90. 0.4. Now but I need your help. Read the sum. A by B के B by A. हाँ? A by B? हमने से A by B. मुक्ता मुक्ता कैसे मुक्ता? इसमें दिया
the account holder first is actually holding current account, and we have to find if he is also holding savings account. We have to find if he is holding, he is already having a current account. So it's A by B. I'm not doing that. Come on, I'm not doing that. What's the answer? 0.8. Yeah. समझ में आ गया? समझ में आ गया? But I'm giving you 2 sums to try as your homework, which you need to do it in your C work only, class work book only. Page 48 पर sum number 5, sum number 6. बस इतने ट्राई करो. 7th के बाद वाले तो अभी से मार्क करना है तो अभी से मार्क कर लो. 7 to 15 all are very important. All are स्टार परिवार. ठीक है, चलो फिर अपने मिलते हैं. बाय.